Assalamu alaikum, dear students. So, our SLOs, we are yesterday or previously we were talking about the significance of branches of biology, and it is still continue. Significance of biology, and I hope you have learned, you have understand all that we have discussed because different students are used to asking the questions throughout the week through WhatsApp groups and through other media. So today we will continue or we will resume the same SLO and the branch, the significant. Today we are going to discuss or start from the branch that is paleontology. Though we have discussed the paleontology, but this slide was remaining or many of the students were saying we couldn't understand this. So I should repeat it again and make sure कि अगर किसी को कोई सवाल है तो as usual he or she can raise the hand and then I will allow him or her to unmute his or her mic to ask the question at the end of the lectures. Make sure कि all the recorded lectures or discussions, whatever we are discussing through our screens, through our PPTs, that is used to record it, and that recorded videos or lectures or discussion I used to upload on video YouTube channel you are most familiar about, and I used to share the links with you people. So let's start from the paleontology. It is a study of fossils because we are talking about the significance of branches of the biology. So इनकी हमें significance पढ़नी है. ये भी हमने slide discuss की थी. So paleontology has played a key role in reconstructing Earth history and has provided much evidences to support the theory of evolution. No doubt, our paleontology helps to support the theory of evolution. Why? Because in this branch we used to discuss about the fossils, and fossils are the ancient remains, और उसमें ही जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके मुतालिक हिस्ट्री जो है वो वहाँ पर उसमें छुपी हुई होती है फॉसिल्स में कि ये फॉसिल्स किसका है, किस एनिमल का है, किस प्लांट का है और ये किस दौर में यहाँ पर थे, अब नहीं है, क्यों नहीं है. सो through paleontology we can actually much more add in our evolution, add or deduct. Okay, so for suppose dinosaurs are not present today but they were present. Why? How we could know this? Actually only because of the fossils and because of their ancient remains. So number 2 points, paleontological studies provides petroleum geologists and locating deposits of oils and natural gas. Make sure कि geologist जो study of earth है और mining of earth है उनके अंदर भी ये paleontology subject पढ़ाया जाता है और उसमें क्या पढ़ते हैं, fossils पढ़ते हैं, animals के, plants के. तो paleontology also helps the geologist to locate the deposits of fossil fuels, जैसे पेट्रोल है, गैस है, ऑयल है, इसको जज करना कहाँ पर हो सकता है वो कैसे पता चलेगा? थ्रू प्लेंटोलॉजिकल स्टडीज के. कैसे प्लेंटोलॉजिकल स्टडी? भाई हम वहाँ पर जाएंगे या जियोलॉजिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आया उसके इर्द गिर्द यहाँ पर मेरे पास हिस्ट्री क्या है इस एरिया की, इस लैंड की, यहाँ पर समंदर था, वाटर था, रिवर था, क्या था, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कुछ फॉसिल्स मिले हो. अगर ऐसे नहीं मिल रहे तो वो माइनिंग करेंगे, डिगिंग करेंगे, उस पर उससे जो कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं अर्थ के अंदर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्रेसेस they
they can know what they want. Okay. So number last point of this slide, paleontology, this the occurrence of such fossil fuels is frequently associated with the presence of remains of certain ancient life forms. Okay, the occurrence of such fossil fuel is frequently associated with the presence of remains of certain ancient life forms यानी fossils. Okay, यानी अगर उसकी मौजूदगी का पता चलता है किनका, फॉसल फ्यूल का. फॉसल फ्यूल क्या मतलब ऑयल गैस वगैरह. तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ऑयल और गैस मौजूद है. ओके, आफ्टर ऑल फॉसल क्या है, यहाँ पर मैंने फॉसल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि फॉसल कहते किसको है. सो अ फॉसल इज एन ओरिजिनल मटेरियल. इम्प्रेशन मटेरियल कहते हैं, इम्प्रेशन कहते हैं उसको, या फिर मोल्ड कह सकते हैं. कॉस्ट और ट्रैक ऑफ एनी एनिमल और प्लांट that is preserved in raw after the original organic material is transformed or removed. यानी जो एनिमल या कोई प्लांट था तो वो खत्म होने के बाद उनके इम्प्रेशन, उनके ट्रेसेस, ये पर ट्रेसेस कहते हैं इसको, ट्रेसेस उनके अंदर वो खत्म हो चुका तो उनके ट्रेसेस किसी रॉक में प्रिंट हो गए. ओके, इम्प्रेशन वहां पर हो चुके और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में तब्दील हो चुका. और इसको और उस चीज को हम क्या कहेंगे, फॉसिल. इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं. ओके, सो आफ्टर ऑल another branch that is environmental biology. Environmental biology or significance of environmental biology. So you could see here. Acha, before going to discuss this branch, let me ask from any of you कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है. अमित, कैन यू कंफर्म बेटा? यस सर, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. ओके, राइट. सो furthermore the environmental biology की अगर हम बात करें तो as name indicates यानी this branch is related to the environment, जिसका हम दूसरा नाम रखते हैं इकोलॉजी. environmental biology और इकोलॉजी. ओके, सो इकोलॉजी और environmental biology की सिग्निफिकेंसेस क्या है वो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. ecology is the study of interactions among living things and their environment. Yani overall the study of interaction between living and non-living things, this is called as environmental biology or ecology. यानी कि हम इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं. It provides new understanding of these vital systems as they are now and how they may change in the future. Yani it provides new understanding of these vital systems. Environmental biology provides information about the environment के मुतालिक और वहां पर जो वाइटल सिस्टम्स हैं, भाई सनलाइट भी है एनवायरनमेंट में, यानी बोले नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग अबायोटिक है, वाटर है, दूसरे जो नो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अब कैसे हैं, फ्यूचर में कैसे होंगे और फ्यूचर में इनके साथ क्या होना है, माहौल के साथ हमें क्या करना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडेड बाय द environmental biology. ये जो that's why we call it, it provides understanding of the vital systems as they are now. वो कैसे हैं आजकल, फ्यूचर में उनका क्या हाल होगा, इन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का. तो बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स.
Number 2 point, environmental biology is important because it enables you to understand how these relationships work. यानी हमें ये भी पता चलेगा कि इस एनवायरनमेंट में ये रिलेशनशिप कैसे काम कर रहे हैं, यानी बायोटिक और अबायोटिक का आपस में रिलेशनशिप, बायोटिक का वर्सेस बायोटिक, बायोटिक का बायोटिक के साथ, एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ, एक जानदार का गैर जानदार के साथ, कैसे मतलब ये होता है. सो दिस इज व्हाट कि हमें कैसे पता चलता है. ओके, फॉर एग्जांपल, ह्यूमन ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमंस या फिर अदर एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और फिर वो कहाँ जाती है, विच प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, और वही कार्बन कहाँ जाती है, प्लांट्स यूज करते हैं. प्लांट्स on the other hand produces and releases oxygen to the atmosphere, which humans and other animals need for respiration. Yani environmental biology or ecology, it helps to understand this how those relationships works. वो relationships कैसे work करते हैं. हमने या फिर दूसरे एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और वो कहाँ गई कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में से कहाँ चली गई, अब ये किसकी नीड है, प्लांट्स की. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे. अल्टीमेटली प्लांट्स विल रिलीज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द अदर एनिमल्स. सो दिस इज द interdependent environment, ecological environment. Furthermore, ecology enriches our world and is crucial or vital for human welfare or well-being and prosperity. यानी इकोलॉजी जो होती है वो हमारी वर्ल्ड की, हमारे एनवायरनमेंट की, जो हमारी सराउंडिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है. क्यों, किस लिए, ह्यूमन की फलाह बहबूद के लिए जरूरी है, क्योंकि वो उसको एनरिच करती है. इकोलॉजी उसकी हमें बताती है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सी, नाउअडेज देयर इज द पेंडेमिक. आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट है भाई, एटमॉस्फेयर में कुछ का कहना है कि भाई एटमॉस्फेयर में ब्रीथिंग के थ्रू ये वायरस जो है वो रिलीज हो रहा है और फिर वह इट इज गोइंग टू बी पैंडेमिक. और एक यानी सोशल कॉन्टेक्ट से और फिर जो वहाँ पर एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक आसानी से ट्रांसफर हो रहा है. आजकल माहौल यही है, एनवायरनमेंट यही है. तो वी आर actually limited at our environment. We are not getting the more benefits from our environment. So it provides new knowledge of the interdependence between people and nature. जो भी new information होगी, that is also provided by the ecology. That is vital for food production, maintaining clean air and water, and sustaining biodiversity in a changing climate. See how ecology helps, how ecology enriches our vital contents in our environment, which are beneficial for the human beings, which are beneficial for the other organisms. कैसे कि वो कैसे इंटरडिपेंड करते हैं ह्यूमन के बीच में और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में, नेचर क्या है और उनके बीच में कौन सी वाइटल चीजें, जैसे फूड प्रोडक्शन वी डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स. क्लीन एनवायरनमेंट है, यानी वी आल्सो
keep in mind we should keep in mind how we have to keep our environment, maintain our environment clean, our water, और even biodiversity को कैसे maintain करना है. Biodiversity, bio means many, or life, diversity means many different types of living things. यानी हमें इसी माहौल में मुख्तलिफ जानदारों को कैसे सस्टेन करना है, उसको उनको ख़त्म नहीं करना. अगर प्लांट है तो उनको हमें कैसे सपोर्ट करना है, उनको कैसे उनकी सपोर्ट करनी है, उनका कैसे केयर करनी है. दूसरे एनिमल्स है, परिंदे हैं, बर्ड्स यानी इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स, हमें कैसे पता चलता है कि ये हार्मफुल है, ये बेनिफिशियल है. सो we have to keep in mind the different types of the organisms are present in our environment and how we are actually look after these type of the biodiversity and even the changing of the climate. Number 2 point of this slide, human economies are based on exploitation. You know, I have written the meaning of exploitation for your easiness in making use of natural resources. Human economies are based on uses and management of nature. यानी नेचर को कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ह्यूमंस की इकोनॉमी इस पर भी डिपेंड करती है. सी नेचर अगर मेंटेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली we can't actually manage our economies. See, nowadays there is the locust, जो कि इंसेक्ट्स हैं जिसको हम ग्रासहोपर्स भी कहते हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर पर जो है उसने धावा बोल दिया है और सब पर जो है वो भारी पड़ रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है. यानी अल्टीमेटली इट harms or it is injurious to our economies. और इसको हमें मेंटेन करना है. इसके लिए इकोनॉमीज को मेंटेन करने के लिए हमें नेचर को मेंटेन करना होगा कि वहां पर कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमें फायदा देते हैं, कौन से हैं जो हमें नुकसान देते हैं. सो वी हैव टू मैनेज द नेचर. आफ्टर ऑल, ह्यूमन सोसाइटीज can often be understood very clearly from an ecological perspective. यानी अगर हम चाहें कि जहाँ पर इंसान रहते हैं और उनकी सोसाइटीज है, वो जहाँ पर वो आबाद है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हमें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना हो कि वहां पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन डायनामिक्स, डेमोग्राफी देखनी है. पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब है डेमोग्राफी किसकी, ऑफ आवर ओन स्पीशीज. डेमोग्राफी की यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट पर ये भी लिख दी है डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज, ग्रोथ और एक्टिविटी इज द डेमोग्राफी. सो आई रिपीट, अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को समझें तो उसकी हमने क्या डिस्कस करना है, क्या स्टडी करनी है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना है. यानी फॉर सपोज उनकी डेमोग्राफी देखनी है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, उनकी पॉपुलेशन की एक्टिविटीज क्या है, उनकी पॉपुलेशन की जो है वो जो मसरूफियात वो क्या है. ठीक है, उसको समझने के लिए यानी डेमोग्राफी, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज, यानी एक पॉपुलेशन यानी ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में उनमें जो चेंज आती है. द फूड एंड द फॉसिल एनर्जी फ्लोइंग थ्रू आवर सोसाइटी, और वहाँ पर जहाँ पर ह्यूमन बसते हैं और जानदार यानी ह्यूमन बींग्स स्पेशली जहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ पर अगर हम चाहते हैं उनको समझें, उनकी सोसाइटी को समझें, तो वी हैव टू कीप इन माइंड द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सच एज डेमोग्राफी, कि उनकी पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम, उनमें वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज हैं, वहाँ पर फूड
फूड की क्या सूरत हाल होती है, वहां पर फॉसिल यानी फॉसिल फ्यूल जो है, कौन सी एनर्जी वहां पर फॉसिल की यानी एनर्जी के लिए कौन से फॉसिल्स यूज होते हैं, आइदर फॉसिल फ्यूल्स आर देयर, सोलर एनर्जी इज देयर और एनीथिंग एल्स फ्लोइंग थ्रू आवर सोसाइटी, वहां पर उस सोसाइटी में कैसे एनर्जी वो फ्लो कर रही होती है. Dear students, we are actually left with 8 minutes. Okay, so keep in mind that we are left with 7 to 8 minutes. Let me complete this branch, and then I am going to listen your questions. Okay, so that is all about the ecology. Let me tell here on the graphic point of view. ecology को अगर हम graphic point of view से समझें तो सारा कुछ हमने पढ़ा है वो इस ग्राफ में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसा कि इकोलॉजिकल इंफोग्राफिक्स, फॉर सपोज इकोलॉजी जब हमारे जहन में आती है तो हमारे जहन में क्या आता है, जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट जहन में आता है, और जब एनवायरनमेंट जहन में आता है तो हमारा अर्थ ग्लोब जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर जानदार रहते हैं. ओके, तो वहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी भी होगी, वहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हीकल ट्रांसपोर्ट, पानी होगा उससे प्रोड्यूस एनर्जी होगी, प्लांट्स होंगे, विंड एनर्जी वहाँ पर जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अक़साम के जो गार्बेजेस होते हैं, उन गार्बेजेस को रिसाइकिल कैसे करती है, क्या है वो, और हमारे यहाँ एनर्जीज के कौन से वसाइल हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या माहौल है. So that is, for suppose solar energy, see only 18% of the sun solar energy it is converted to electrical power, यानी हम 18% सिर्फ करते हैं पूरी दुनिया में इसमें. हाइब्रिड व्हीकल्स की अगर बात करें तो हाइब्रिड कार्स प्रोड्यूस 90% लेस पोल्यूटेंट. अगर हम माहौल को बचाना चाह रहे हैं, हम इकोलॉजी को बचाना चाह रहे हैं, हम अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, जानदारों को बचाना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस टाइप की मशीन्स यूज करें जो हमारे माहौल को कम से कम नुकसान दे. जैसे हाइब्रिड कार्स व्हीकल आपने सुना होगा, बहुत सारी जापानीज कार्स या कार इंडस्ट्रीज जो है, व्हीकल इंडस्ट्री, उन्होंने इस टाइप की कार्स जो है वो मुतारिफ करवाई है हाइब्रिड, यानी वो या तो उसको केमिकल एनर्जीज के थ्रू या फिर स्टोर्ड एनर्जी या सोलर से वो भी चलती हैं, और फिर फ्यूल से भी चलते हैं, ताकि 90% लेस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो. पॉल्यूटेंट्स मींस द केमिकल्स which produces pollution. वाटर एनर्जी क्या है, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस थ्रू वाटर, बिल्कुल कम, यानी बाकी जो है वो फॉसिल फ्यूल से, इसीलिए हमारी जो एनर्जी है पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है. सो 60% जो हमारे रिसाइकलेबल थिंग्स है ऑफ द गार्बेज दैट एंड्स अप ऑफ डस्टबिन क्लाउड्स बी रिसाइकल्ड, यानी 60% हम नहीं कहते इनको रिसाइकिल करना है, 60% को भी, ताकि हमारे यहाँ कम से कम पोल्यूशन हो या वही चीज़ें इस्तेमाल हो, ताकि हम जो फ्लो है एक हमारे माहौल में उसको हम बरकरार रख सकें. सो कीपिंग इन व्यू द टाइम and your level, because I have to explain each and everything. आपके लेवल को कुछ टर्म्स होते हैं वो भी डिस्क्राइब करने होते हैं, इसीलिए ये SLO थोड़ा बहुत लंबा होता जा रहा है, और क्योंकि हमें एक एक टर्म्स जो है वो भी डिफाइन कर रहे हैं. सो आई होप you got it, and if any question you may ask please. अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है बेटा. सबसे पहले जो है दैट इज रियाजुल्लाह. जी बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर. हाँ बेटा. सर हमें ये पूछना था कि सर जब हम रिसाइकिल करते हैं किसी चीज को सर, तो उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है? किसको किसमें फर्क पड़ता है?
सर जब हम किसी चीज को रिसाइकिल करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे तो फर्क पड़ता है ना, जी हाँ, पड़ता है नहीं? हाँ बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इसको कम करने के लिए वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल। जाहिर है मटेरियल में पहले हम फॉर सपोज 2 kg गार्बेज जो है वो यूज करते हैं और रिजल्ट में हमें बिल्कुल कम मिलता है, ठीक है। और अगर एक मरतबा आए तो क्वालिटी बेहतर रहेगी, अगर वही दूसरी तीसरी मरतबा हम रिसाइकिल करते हैं तो इन दिस वे क्वालिटी, सर